Okay, so hello friends. Uh, so today we are going to start with the second lecture of strength of material or mechanics of solids. And in this lecture हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज़ योर यूनिट 1 फॉर ऑल ऑफ योर यूनिवर्सिटीज, विच एवर यूनिवर्सिटी यू आर स्टडिंग इन, डजंट मैटर. ओके, तो इसमें पहली चीज़ तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दैट लेट मी टेल यू. ठीक है, पहले लाइक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ओके, concept of what is stress and what is strain, that we'll try to see. Then there is the stress strain diagram. Okay, this is stress, this is strain. The third one is elasticity and plasticity, a little bit about these concepts. Okay, then we'll try to see the types of stresses and strain. उसमें उसके बाद we have the Hooke's law, we have stress strain diagram for mild steel, for then what is factor of safety, what is lateral strain, what is Poisson's ratio, etc etc. Okay, that we'll try to see. Then उसके बाद volumetric strain. Okay, and elastic modulus, the relation between elastic modulus. Okay, that is elastic moduli. We have 2-3 types of elastic moduli. Then bars with varying section. This is actually see, we are not going to see this very serially, but this is the overall content which we are going to cover. Then we have the composite bars. सो मोस्टली विल बी कवरिंग द एक्सियल वाला पार्ट पहले. ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर स्ट्रेसेस. ठीक है, तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस. देन हम लोग फाइनली देखेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी, ग्रेजुअल सडन काइंड ऑफ लोडिंग्स, सडन लोड्स. ओके, इम्पैक्ट और शॉक लोडिंग. ओके, दिस इज द टोटल कंटेंट ऑफ दिस particular chapter that we'll be seeing. ठीक है, इसमें this chapter can also be called as actually axial loading. Okay, see, let me tell you कि SOM is a subject. SOM ऐसा subject है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, this is your strength of materials. अगर दुनिया में कहीं भी जाओ, कोई भी बॉडी देख लो, okay, any body for that matter, any body, you yourself, any kind of body is there. ठीक है, there can be only 4 types of forces. 4 ही तरीके के forces हो सकते हैं. only 4 types of forces. कौन से? One is axial force. ठीक है, क्या है, let me tell you, बताता हूँ. ठीक है, axial force, shear force, bending moment, और फाइनली चौथा होता है दैट इज़ टॉर्शन. ओके, तो ये 4 ही तरीके के फोर्सेस दुनिया में होते हैं. ये चारों फोर्सेस को कंबाइन करके और यू कैन डू एनीथिंग. बट दुनिया में अगर कोई भी फोर्स होगा तो इन चारों फोर्स में से एक होगा, इनके अलावा कोई नहीं. अभी एक्सियल फोर्स में कौन कौन है? एक टेंसाइल फोर्स होता है, एक कॉम्प्रेसिव होता है. अभी एक्सियल फोर्स मतलब क्या? देखो, इफ़ यू हैव अ बार समथिंग लाइक दिस, इफ़ यू हैव अ स्टील रॉड बार वट एवर इट इज़, इफ़ यू आर ट्राइंग टू पुल इट इन द बोथ साइड्स विद द फोर्स लेट अस से P, व्हाट इट विल हैपन, उसको क्या होगा, ये इलोंगेट करेगा. इट विल ट्राई टू इलोंगेट, राइट, इट विल इलोंगेट ऑन बोथ द साइड्स. सो इसमें कौन से टाइप का ये आ रहा है, टेंशन आ रहा है. वही अगर तुम लोग क्या करते हो, इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंप्रेस इट, ये जो P फोर्स है उसको उल्टी डायरेक्शन में लगा रहे हो, टूवर्ड्स द बॉडी. दिस इज़ अवे फ्रॉम द बॉडी, दिस इज़ टूवर्ड्स द बॉडी. ठीक है, दैट इज़ कॉम्प्रेसिव फोर्स. ठीक है, तो इसमें क्या डेवलप होगा, कॉम्प्रेशन. ये क्या हो जाएगा, ऐसा थोड़ा सा सिकुड़ सा जाएगा, बल्ज हो जाएगा और ऐसा कंप्रेस हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग?
तो दिस इज कॉम्प्रेसिव फोर्स, बट बोथ ऑफ दिस आर, दिस इज टेंसाइल फोर्स, टेंशन, compression, but both of them are nothing but axial forces. Okay, then we have shear force, we have bending moment. What is shear force? If you have a let me show you. If you have a body something like this and you're trying to cut it, so if you're trying to cut it and it becomes something like this after cutting down, so if you're trying to cut it in the perpendicular direction, okay, so whatever this is happening in the perpendicular direction, that is shear. And if you have same kind of bar, but what you are trying to do is you are trying to load it with some loading, okay, with some supports, let us say supports, what is happening is bending, okay, so it is trying to bend in such a way, कोई movement उस पर act हो रहा है, you are applying some movements, whatever it is, that is bending movement. उसके बाद if you have a rod of same thing, this is a rod, let us say, okay, and this is a rod, you are trying to rotate it, मतलब इसको clockwise और इधर से anti clockwise, तो you are trying to kind of twist it, turn it, तो that is called as torsion. ये चार ही तरीके के फोर्सेस है। और सॉम में हम इन जनरल क्या देखने वाले, पहले यूनिट में हम देखेंगे एक्सियल लोडिंग, सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स, मतलब शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट्स के जो भी इफेक्ट्स होंगे, जो भी स्ट्रेसेस उनके वजह से तैयार होंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड इज़ प्योरली शियर एंड बेंडिंग, तो ये इसके फॉर्मूलेस है कुछ, हाउ डज शियर एक्ट, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और बेंडिंग मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉट एवर दोज काइंड ऑफ थिंग्स। फोर्थ चैप्टर इज़ योर टॉर्शन, इस टॉर्शन में हम फोर्थ वाला देखेंगे। इसके बाद है हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस में क्या होता है, या फिर कंबाइन लोडिंग, तो इसमें सारे लोड्स कंबाइन अगर करोगे 2-3 टाइप, तो यू विल गेट द दिस वन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। उसके बाद आता है कॉलम्स, तो कॉलम्स जो है, कॉलम्स में हम क्या करते हैं, कंप्रेशन लोडिंग होता है, उसमें से वी ट्राई टू फाइंड समथिंग आउट, ठीक है, दैट विल सी। फाइनली वी फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, दिस इज नथिंग बट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ योर लोडिंग। स्ट्रक्चर कुछ तरीके से बिहेव करता है, इफ़ यू आर लोडिंग तो उसका डिफॉर्मेशन होता है, उसमें डिफ्लेक्शन आता है, उसमें स्लोप दिखाई देता है, कुछ ना कुछ उसमें हमें रिजल्ट दिखता है, कुछ ना कुछ हमें आउटपुट दिखता है बिकॉज ऑफ आवर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दैट इफेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्लोप और डिफ्लेक्शन। इन इस केस में अगर इफ़ यू सी, दिस इज़ नथिंग बट द स्लोप एंड दिस इज़ द डेल्टा, दैट इज़ डिफ्लेक्शन, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट इट इज़ गोइंग टू बी देयर। अभी लेट मी टेल यू, लेट अस स्टार्ट विथ आवर एक्सियल लोडिंग चैप्टर। पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। लेट अस सी कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। सो लेट अस से कि भैया आपके पास ये कोई एक बॉडी है, ओके, दिस इज़ अ बॉडी। इस पे क्या हो रहा है कि अलग अलग तरीके के लोड्स लग रहे हैं, कंप्रेशन लोडिंग, टेंसाइल लोडिंग, इस पे कोई मूवमेंट लगा रहा है, कोई कुछ शियर टाइप का लोड लगा रहा है, कोई हज़ार तरीके के या नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कुछ लोड्स लग रहे हैं। अभी ये लोड्स क्या करेंगे, क्या लग रहे हैं इस पे लोड्स, दिस लोड्स दे cause two things, either first thing is deformations, okay, they cause two things। पहली चीज़ क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन, मतलब उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, उसको स्लोप दिखने लगेगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, राइट। सेकंड थिंग क्या होगा, इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। क्या होगा, इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे इसमें, ओके। अभी दो चीज़ें होगी, लोड लगाने के बाद हमारे पास दो चीज़ें होगी, लोड लगाने के बाद हमारे पास दो चीज़ें होगी, दैट इज़ डिफॉर्मेशन आएगा, दूसरा आएगा इंटरनल स्ट्रेसेस और इंटरनल फोर्सेस, यू कैन कॉल देम एज इंटरनल फोर्सेस, ओके। अभी
ये किस तरीके से होते हैं, मतलब इसको अगर कैलकुलेट करना होगा तो दिस पीपल आर नथिंग बट द फंक्शन ऑफ थ्री चीज़ें। एक तो लोड, कौन सा लोड अप्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि डिफॉर्मेशन कैसे आ रहा है। जिस तरीके का लोड अप्लाई करोगे उस तरीके के इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे, राइट। तो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का लोड है, डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल पे अप्लाई कर रहे हो। अभी देखो तुमने मुझ पे कोई तरीके का एक लोड अप्लाई किया, कोई सेम वे दूसरे एक आदमी के ऊपर अप्लाई किया, तो दोनों का बिहेवियर, दोनों का रिएक्शन अलग अलग होगा, राइट। किसी बंदे को आपने जाके खली को एक कान के नीचे लगा दी तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही जाके आपके क्लासमेट को लगा दी तो शायद उसको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि मटेरियल किस टाइप का है, ओके। उसके बाद आता है डायमेंशंस। अभी वो मटेरियल के डायमेंशंस, वो बॉडी के डायमेंशंस भी मैटर करते हैं, इजंट इट। तो ये तीन चीज़ों का फंक्शन होते हैं, क्या, डिफॉर्मेशन और इंटरनल फोर्सेस। मतलब क्या हो रहा है, पहले तुमने लगाया लोड, लोड के वजह से क्या आया, तुमने लगाया लोड, लोड के वजह से आया डिफॉर्मेशन आया। डिफॉर्मेशन किस चीज़ों का फंक्शन है, डिफॉर्मेशन इज़ नथिंग बट द फंक्शन ऑफ लोड, मटेरियल एंड डायमेंशंस ऑफ दैट बॉडी। उसके वजह से ये डिफॉर्मेशन चेंज होगा, मतलब तुम्हारे लोड, जो भी तुम्हारा इनपुट है उसके वजह से कुछ तरीके के डिफॉर्मेशंस आएंगे, ओके। अभी इस डिफॉर्मेशन को बॉडी क्या करना चाहेगी, इस डिफॉर्मेशन को बॉडी क्या करना चाहेगी। अगर तुम्हें कोई मारने आ रहा है तो व्हाट विल यू ट्राई टू डू, विल ट्राई टू रेजिस्ट, विल ट्राई समबडी शुड नॉट हिट यू। अगर कोई मारने आ रहा है तो विल ट्राई कि दैट पर्सन शुड नॉट बी एबल टू हिट यू, यू विल वर्क इन द डिफेंसिव मैनर, राइट। तो द रेजिस्टेंस, द बॉडी resist, the body tries to resist or resist the deformation, okay। डिफॉर्मेशन रेजिस्ट करने के लिए अभी तुम्हारा कितना कैपेसिटी है ये डिफॉर्मेशन रेजिस्ट करने के लिए, उस पर तुम्हारी ताकत डिपेंड है ना। अगर कोई बंदा आके तुम्हें मार रहा है, छोटा सा बंदा आके मार रहा है, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो वो सामने आएगा, तुम सिर्फ उसके ऊपर एक नज़र डालोगे तो वो बंदा भाग जाएगा, राइट। तुम्हारी स्ट्रेंथ के सामने उसकी स्ट्रेंथ कुछ नहीं थी, ठीक है। तुम्हारी ताकत के सामने उसकी ताकत कुछ नहीं थी, तुम डिफॉर्म हुए क्या, नहीं हुए। अभी सेम टाइम अगर कोई, समझ लो यू आर अ मीडियम लीन गाय, और कोई मोटा सा बंदा आ रहा है तुमसे बड़ा हाइट है, और तुम्हें उसके तरफ देखने के लिए थोड़ा ऊंचा होके देखना पड़ रहा है, तुम्हारी गर्दन ऊपर करके देखना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि ही इज़ मोर स्ट्रांगर देन यू, उसके पास तुम्हारे से ज़्यादा ताकत है। तो वो अगर आएगा और वो एक कान के नीचे लगाएगा तो शायद तुम डिफॉर्म हो जाओगे, 100% डिफॉर्म नहीं हो जाओगे, एक कान के नीचे लगाने के बाद शायद तुम डिफॉर्म हो जाओगे, मतलब कुछ तो होगा तुम्हें, बट यू विल बी देयर इन द पोजीशन, खड़े रह पाओगे, गिर नहीं जाओगे, ठीक है। या फिर जगह पे ब्लैकआउट नहीं हो जाओगे शायद। और अगर उसने काफ़ी और 2-4 लगा दी तो प्रोबेबली विल बी ब्लैकिंग आउट, ठीक है, ब्लैकआउट हो जाओगे। मतलब तुम्हारे स्ट्रेंथ से ज़्यादा अभी वो बंदा आके तुम्हें मार रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सी तुम ये हो, तुम और ये है वो बंदा, ठीक है, मोटा सा, ये आके तुम्हें एक कान के नीचे लगा रहा है। तुमने पहली बार लगाया, थोड़ा सा लगा रहे, क्या हो रहा है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, और एक लगाई तो तुम डायरेक्टली नीचे, ओके। इसका मतलब ये क्या हो गया, तुम फेल हो गए। और ये बंदा क्या कर रहा है, लोड अप्लाई कर रहा है, ये बंदा अप्लाई कर रहा है लोड, उसके वजह से तुम्हारा हुआ डिफॉर्मेशन, ठीक है। पहले तुमने क्या किया, तुमने ट्राई किया कि रेजिस्ट करने के लिए, तुमने रेजिस्ट करने के लिए ट्राई किया इनिशियली, बट लोड इतना बढ़ते गया, वो थप्पड़ के ऊपर मारते गया, फिर तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फेल्यूर हो गया। तो तुम्हारा जो कैपेसिटी था टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन, तो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, द रेजिस्टेंस
to deformation, what can we call it as? We can call it as strength. Strength मतलब resistance to deformation. Okay, strength of that particular material. So what is strength? Strength is nothing but resistance to deformation. Okay, so let us consider there is a bar. Okay, this is your cylindrical bar. ओके उसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स क्रॉस सेक्शन ऑन द बोथ साइड्स. ओके, on the both sides you are applying some force. Sorry. Okay, you are applying some force P. अभी क्या होगा अगर तुम इसको तोड़ के देखोगे, अगर तुमने इसको यहाँ से ऐसा तोड़ दिया और अंदर जाके अभी फोर्स अप्लाई हो रहा है. फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके अंदर क्या हो रहा है अगर तुम्हें झाँक के देखना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा कट करेंगे. कट करने के बाद क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ का क्रॉस सेक्शन तो ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी, ओहो यहाँ पे यू कैन सी समथिंग लाइक दिस. ये फोर्स पी लग तो रहा है, हमने क्या किया इसको यहाँ से कट कर दिया और हम उसको देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है. उसके कान के नीचे तुमने लगाया है, वो क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या कंडीशन चल रही है वो हम देखना चाहते हैं. तो ये पी लगा हुआ है. अभी हमें समझ में आया ये क्या है तुम्हारा, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर क्रॉस सेक्शनल एरिया. करेक्ट, ये क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हैं. इसमें समझ में आया कि भैया यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इस पी फोर्स को, ये जो पी फोर्स लग रहा है इसको रेजिस्ट करने के लिए छोटे छोटे ऐसे सारे फोर्सेस है. ठीक है, कुछ फोर्सेस है जो रेजिस्ट कर रहे हैं इसको होने वाले डिफॉर्मेशन को. ओके, ये सारे क्रॉस सेक्शन में, एंटायर क्रॉस सेक्शन हैज़ दिस स्मॉल सिग्मा 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 दिस काइंड ऑफ फोर्सेस जो क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं. किसके साथ? ये पी के साथ. क्यों? उसको रेजिस्ट करने के लिए. तो ये क्या है? दिस इज़ नथिंग बट योर इंटरनल फोर्स per unit area. That sigma is nothing but the internal force per unit area. ये छोटू एरिया पे एक छोटू फोर्स लग रहा है. तो वो छोटू फोर्स जो है एक छोटे एरिया पे उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस. क्या बोलते हैं उसको? वी कॉल इट एज स्ट्रेस. उसको लिखते हैं सिग्मा से. ओके, सिग्मा से. तो अभी इक्विलिब्रियम ने तुमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा. इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज ज़ीरो. सारे फोर्सेस तुम्हारे ज़ीरो होते हैं इन एनी डायरेक्शन. अगर एक्स डायरेक्शन में बात करोगे तो सारे फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन ज़ीरो. वाई डायरेक्शन में बात करोगे तो सारे फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, मूवमेंट्स का भी बात करोगे तो मूवमेंट्स भी ज़ीरो. बट हमें यहाँ पे मूवमेंट्स का कोई अभी लेना देना है नहीं इस मूवमेंट पे. अगर देखते हैं इक्विलिब्रियम लगाना चाहते हैं इस सेक्शन पे, तो अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो हमें ऐसे नज़र आता है कि भैया टोटल एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट इज़ एक्सटर्नल फोर्स? P. टोटल एक्सटर्नल फोर्स is equal to total internal force. समझ में आ रहा है? टोटल इंटरनल फोर्स. तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स कौन है? टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट योर P. और इंटरनल फोर्स क्या हो रहा है? ये छोटू सिग्मा जो है वो सारे सिग्मा मिलाने पड़ेंगे ना, पूरी इस बॉडी की ताकत मिलानी पड़ेगी टू काउंटर अटैक दिस P एक्सटर्नल लोड के लिए. तो ये सारे इस छोटू टोटल पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू ए पे एक्ट कर रहे हैं. उनको अगर मल्टीप्लाई कर दे पूरे एरिया में, सिग्मा इंटू ए कर दे, तब जाके वो लड़ पाएंगे इस एक्सटर्नल फोर्स P से. समझ रहे हो? तो दैट इज़ योर इक्विलिब्रियम. P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए.
that is how you define. So that is how you define the force. What is stress? Therefore the stress is nothing but the force upon area. Now you can define कि what is stress. The stress is nothing but the force upon area. ओके अभी इसका यूनिट क्या रहेगा मित्र? P ये फोर्स है, ये एक्सियल फोर्स है, इसका यूनिट रहेगा न्यूटन या फिर किलो न्यूटन या फिर वॉटएवर न्यूटन। एरिया किस रहेगा? एरिया रहेगा तुम्हारा mm² या फिर मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, वॉटएवर इट इज़, जो भी लेंथ का स्क्वायर। इसको हम बोल सकते हैं, इसको दूसरी भाषा में हम बोलते हैं मेगा पास्कल, इसको बोलते हैं मेगा पास्कल। ओके कैसे बोलते हैं? न्यूटन पर mm² को अगर तुम कन्वर्ट करोगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन mm²। अगर mm² को तुम्हें मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे बोलो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, करेक्ट। अगर इसका स्क्वायर ले ले बोथ साइड्स तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मीटर्स का स्क्वायर 1000 का स्क्वायर करना पड़ेगा, mm का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 का स्क्वायर मतलब 10⁶ mm²। अभी तो देयरफॉर mm² कितना हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू mm²। तो रिप्लेस कर दो भैया इसको न्यूटन पर। mm² इक्वल टू क्या है? 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। 10⁻⁻6 को लेके जाओ ऊपर, ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? उसको बोलते हैं पास्कल। ये तुम आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। उसको बोलते हैं पास्कल, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आएगा तुम्हें। 10⁻⁶ और 10⁻⁶ को क्या बोलते हैं? मेगा। ओके 10⁻³ को बोलते हैं किलो। ओके 10⁻⁶ को बोलते हैं मेगा, 10⁻⁹ को बोलते हैं गीगा, ठीक है। आई होप यू नो दिस। तो मेगा पास्कल, ओके दैट इज हाउ यू राइट इज MPa। सो 1 न्यूटन पर mm² इज नथिंग बट 1 मेगा पास्कल। ओके तो इसका यूनिट हो गया मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm², ठीक है। देन लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इज डिफॉर्मेशन। अभी हम बोलते हैं लेट अस ट्राई टू सी डिफॉर्मेशन क्या होता है। अभी पकड़ो कि ये तुम्हारा एक बार है, ठीक है। दिस इज अ बार विथ 1 एंड फिक्स्ड, यहाँ पे फिक्स लगाया हुआ है। इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है L। अभी तुमने क्या किया है? इस पर फोर्स लगाया है P। अभी ये क्या करेगा मेरे दोस्त? अभी अगर तुम देखोगे ये ऐसा है, ये क्या करना चाहेगा? ये करना चाहेगा डिफॉर्मेशन। इसका हो जाएगा डिफॉर्मेशन कुछ ऐसी तरीके से, राइट। डिफॉर्मेशन क्या हुआ है मतलब? देखो यहाँ तक देखो, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक के कुछ है, वॉट एवर इट इज़, दिस थिंग इज नथिंग बट डिफॉर्मेशन। Whatever is this is deformation. We can call it as delta L. This was your length, total length. This is your change in length or deformation or extension or elongation. Okay, you can also call it as elongation or deformation or extension, whatever it is. Okay, तो हमारे फोर्स P के वजह से क्या हो रहा है दोस्तों? डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा इनिशियल लेंथ कितना था? इनिशियल वाज L। फाइनल आफ्टर लोडिंग कितना हुआ? L प्लस डेल्टा L हो गया। देयरफॉर चेंज इन लेंथ कितना हुआ? व्हाट इज डिफॉर्मेशन? व्हाट इज डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या होगा? दैट इज नथिंग बट डेल्टा L। तो आफ्टर लोडिंग माइनस इनिशियल, ओके, या फिर बिफोर लोडिंग। व्हाट इज आफ्टर लोडिंग? L प्लस डेल्टा L माइनस इनिशियल क्या था? L। तो अगर तुम देखोगे इट कम्स आउट टू बी L कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा L। तो तुम्हारा डिफॉर्मेशन इज नथिंग बट
delta L. Okay, the deformation is nothing but delta L. Okay, अभी डेल्टा एल कैसे होता है? व्हाट इज डेल्टा एल? चेंज इन लेंथ, मतलब जितना लेंथ चेंज हुआ। पहले पकड़ लो, पहले था तुम्हारा 10 मीटर्स, अभी 10.1 मीटर हो गया, तुम्हारा लेंथ हो गया 10.1 मीटर, तो कितना हुआ? 0.1 मीटर तुम्हारा डेल्टा एल हो गया। सिंपल। ओके, गॉट इट। तो अभी देखते हैं व्हाट इज, पहले हमने देखा स्ट्रेस, अभी बोलते हैं देखो ये डिफॉर्मेशन जो है, अगर हम उसको कंपेयर करें, दिस चेंज इन लेंथ, उसको अगर हम कंपेयर करें विथ ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, डेल्टा एल विथ ओरिजिनल लेंथ, तो वी कैन कॉल इट एज स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेन मतलब क्या है? स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। सो एप्सिलॉन दैट इज नथिंग बट स्ट्रेन इज इक्वल टू change in length upon original length. So this is another important parameter for you guys, that is strain is equal to delta L upon L. ठीक है, और हमने अभी अभी पहले क्या देखा था कि स्ट्रेस वाज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, द अप्लाइड फोर्स, द अप्लाइड एक्सियल फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज योर स्ट्रेस। ओके, सो दिस वाज योर स्ट्रेस, this was your strain. अभी एक बंदा था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। एक बंदा, his name was रॉबर्ट हुक। उसने क्या किया? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। किस पे किया? एक स्ट्रक्चरल मेंबर पे किया। एक स्ट्रक्चरल मेंबर पे, स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होता है? जो मेंबर लोड लेता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, किस चीज़ का? ले पकड़ लो, स्टील का था, कभी आयरन का लेके देखा, एक बार उसने कास्ट आयरन का लेके देखा, एक बार कॉपर, एक बार एल्यूमिनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो रिसर्चर था, उसको यही काम था। बट हमें इम्पोर्टेंट क्या है कि उसने क्या ऑब्जर्व किया और उसने हमें क्या बताया। ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक बार लिया। ठीक है, बार लिया जैसे हमने पहले लिया था वैसे ही, वो बार लेके उस पर क्या किया? एक्सियल फोर्स P लगाया। ओके, एक्सियल फोर्स P लगाया, पहले क्या किया? लोड लगाया, P लोड लगाया। ओके, उसमें क्या दिखाई दिया? कुछ डिफॉर्मेशन हुआ। बिकॉज ऑफ दिस लोड देयर वाज सम डिफॉर्मेशन, दैट वाज डेल्टा L1, लेट अस से पहली केस में। ठीक है, दूसरी केस में क्या किया उसने? और लोड लगाया, थोड़ा सा लोड बढ़ा दिया। ओके, सेम चीज़ किया, सेम बॉडी लिया। ठीक है, सेम बॉडी लिया, सेम एग्जैक्टली सेम। ओके, इसलिए मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। सेम बॉडी लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको इधर रखा। अभी क्या किया? पहले P लगाया था, P1। अभी क्या किया उसने? और ज़्यादा लोड लगाया, और ज़्यादा लोड लगाया, दैट इज़ P2। उसमें क्या हो गया? तो भैया डिफॉर्मेशन तो ज़्यादा आया ना यार, डेल्टा L2 जो था वो काफ़ी ज़्यादा आया, डेल्टा L1 से ज़्यादा आया। अभी उसने और एक बार देखा, अरे भैया हमने थोड़ा सा लोड क्या बढ़ा दिया, डिफॉर्मेशन तो बढ़ गया। चलो और थोड़ा बढ़ा के देखते, थोड़ा और मज़े लेते हैं, है ना। और मज़े लेने लगा, भैया क्या बात कर, और लोड लगाया, P3 लगाया, P3 लगाया भैया, इससे भी ज़्यादा बड़ा लगा दिया P3। उसमें डिफॉर्मेशन जो दिखा है क्या बताऊँ भाई, खतरनाक, और डिफॉर्मेशन बढ़ गया, दैट वाज डेल्टा L3। तो उसने क्या बोला कि भैया अगर हमने लोड लगाया, ठीक है, उस लोड को क्या किया? इंक्रीज़ करते गया। अगर लोड को इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ? हमने पाया कि डेल्टा L इंक्रीज़ हुआ। डेल्टा L इंक्रीज़ हुआ मतलब क्या हुआ तुम्हारा? व्हाट इज़ डेल्टा L? स्ट्रेन का क्या होगा? अगर डेल्टा L इंक्रीज़ हो रहा है, अगर डेल्टा L इंक्रीज़ हो रहा है, ओरिजिनल लेंथ तो उसने कांस्टेंट रखा था ना मेरे दोस्त, सेम ही सैंपल लिया था, सेम सैंपल लिया था, सेम लेंथ लिया था, ओरिजिनल लेंथ भी सेम था। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L। इससे ये समझ में आता है अगर तुम्हारा L कांस्टेंट रहेगा तो उसने लोड बढ़ाया,
लोड बढ़ा है तो डेल्टा एल बढ़ा, डेल्टा एल बढ़ा तो क्या हो गया, डेल्टा एल बढ़ा तो तुम्हारा स्ट्रेन बढ़ गया, राइट। और तुम्हारा लोड बढ़ा, जैसे तुम्हारा लोड बढ़ रहा था, तो जैसे लोड बढ़ रहा था एरिया तो तुम्हारा कांस्टेंट था। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया था इस बंदे का, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, वो तो कांस्टेंट ही चल रहा था ना। तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया ए कांस्टेंट था। तो पी का क्या हुआ, अगर पी इंक्रीज़ करोगे तो सिग्मा भी इंक्रीज़ कर जाएगा, मतलब स्ट्रेस वाज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो जैसे जैसे लोड बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे स्ट्रेस was also, that is sigma was also increasing, stress was also increasing। अगर तुम ये दोनों चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे लाओगे, स्ट्रेस बढ़ रहा था स्ट्रेन बढ़ रहा था, स्ट्रेस बढ़ रहा था स्ट्रेन बढ़ रहा था, स्ट्रेन बढ़ रहा था तो स्ट्रेस बढ़ रहा था, ये सारा उसने ट्राई किया। उसने क्या किया, प्लॉट किया एक ग्राफ, जिसमें उसे समझ में आया कि उसने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए। उसमें उसने क्या किया कि भैया स्ट्रेन देखा और स्ट्रेस देखा। पहले वाला स्पेसिमेन में देखा भैया कुछ तो आया, कुछ स्ट्रेन आया कुछ स्ट्रेस आया, तो यहाँ पे आया। फिर उसने देखा कि सेकंड वाला आया, यहाँ पे आया। फिर ऐसे करते करते उसने उसके लाइन ड्रॉ करी, तो उसके समझ में आया कि भैया ये तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, भैया ये तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रहा है ये, सॉरी, बट उसने क्या देखा कि भैया ये, ओ माय गॉड, उसने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ऐसे उसने पाया। तो उसने क्या बोला कि अरे भैया इस चीज़ का एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन इन दोनों में कुछ रिलेशन है, कुछ तो रिलेशन है। और ये रिलेशन उसने फाइंड आउट किया बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज योर इक्वेशन। अभी यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है, इसका मतलब c तो 0 हो जाएगा। तो तुम्हारा इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स। यम क्या होता है स्लोप। स्लोप मतलब स्लोप को कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। उसने देखा कि भैया ये स्ट्रेस जो था ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है विद द स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा उसने देखा। उसके बाद उसको समझ आया कि चलो स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट अस से के इनटू एप्सिलॉन। तो ये के को क्या होगा, देखो ये दो इक्वेशन कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स और सिग्मा इज इक्वल टू के एप्सिलॉन। मतलब के क्या हो गया, एप्सिलॉन तुम्हारा एक्स एक्सिस पे दैट इज एक्स हो गया, सिग्मा तुम्हारे वाई एक्सिस पे तो वाई हो गया, के मतलब तुम्हारा आ गया एम दैट इज स्लोप। तो स्लोप ऑफ दिस कर्व, स्लोप ऑफ दिस कर्व, अगर उन्होंने क्या 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 देखा उसने कि भैया जब भी मैंने आयन लिया, पहले मैंने उसने क्या किया, पहले उसने लिया आयरन लिया, तो आयरन का कुछ स्लोप आया, ठीक है, m1, दिस y बाई एक्स m1 स्लोप आया, कुछ स्लोप आया m1। फिर उसने कास्ट आयन लिया, कास्ट आयन में भी उसको यही दिखा कि यार लीनियर रिलेशन तो आ रहा है बट इसका स्लोप जो है वो कुछ अलग आ रहा है m2। मतलब ठीक है चलो एल्यूमिनियम पे ट्राई करते हैं। तो उसने क्या किया, एल्यूमिनियम पे ट्राई किया तो साला और अलग तरीके का एक स्लोप आया। बट इसमें भी यही पाया कि भैया स्ट्रेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इस स्लोप को उसने क्या नाम दिया, उसने बोला ये क्या चीज़ है, जैसे मटेरियल चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे ये स्लोप चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये किसका प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, दिस इज़ द मटेरियल प्रॉपर्टी। अगर मटेरियल का प्रॉपर्टी है तो उसको कुछ नाम देते हैं। उसने नाम दिया, उसका नामकरण करवाया, उसको बोला इलास्टिक मॉड्यूलस। उसने बोला उसको इलास्टिक मॉड्यूलस, और कभी कभी बोल देता था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो भैया इसको नाम पड़ गया और इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका रीनेम हो गया ई। तो हम अभी तक क्या जानते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो ये जो भी इक्वेशन आया
इसको उस बंदे का नाम दे दिया गया। उस बंदे का नाम क्या था साइंटिस्ट का? हमने स्टार्टिंग में बोला हुक था, रॉबर्ट हुक। तो इसको बोल दिया हुक्स लॉ, क्योंकि उसने फाइंड किया ना भैया, उसने मेहनत करी, उसका नाम दे दिया हुक्स लॉ। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट हाउ योर स्ट्रेन स्टार्टेड, व्हाट हैपेंड वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द समरी। समरी क्या है? तो भैया लेट अस समराइज दिस थिंग हियर। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट, पहली चीज़ उसका नेचर कैसा है? नेचर कैसा है? इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू योर सरफेस एरिया, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये तुम्हारा पी है लेट अस से, पर इसको तोड़ते हैं, और इसको तोड़ते हैं ऐसे, यहाँ से बीच में से तोड़ते हैं, दोनों को ट्राई करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अलग कर दे, यहाँ से यहाँ। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि क्या चल रहा है, तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे कुछ सिग्मा 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 ऐसा एक कुछ यूनिफॉर्म सा दिख रहा है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया एक्ट कर रहा है, राइट। यहाँ पे कौन लग रहा था? पी फोर्सेस लग रहे थे, ओके, जैसे हमने ऊपर देखा। तो दिस इज़ नेचर, उसका नॉर्मल स्ट्रेस है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है भैया? डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, एक गिवन सेक्शन पे वो यूनिफॉर्म दिख रहा है, देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यूनिफॉर्म ऑन ए गिवन सेक्शन। कोई भी सेक्शन कट कर लो, कहीं पे भी देख लो, ये तुम्हारा बॉडी है, तुम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पूरे सेक्शन पे सेम दिखेगा। यहाँ पे कट करो, यहाँ ए और बी दोनों का अलग रह सकता है, बट पूरे बी सेक्शन पे कहीं पे भी देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, सेम रहेगा। ए सेक्शन पे कहीं भी देख लो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सेम रहेगा, बट ए और बी में अलग हो सकता है। ओके, सो दैट इज़ यूनिफॉर्म एट एनी सेक्शन। और तीसरी चीज़ क्या होती है? मैग्नीट्यूड। व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मतलब उसका फॉर्मूला भैया, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज़ नथिंग बट, अगर दूसरा इक्वेशन लगवाएंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, तो उससे हमें पता चलेगा कि भैया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। अगर व्हाट इज स्ट्रेन, व्हाट इज़ योर स्ट्रेन भैया? स्ट्रेन वॉज, हमने ऊपर ही देखा, डेल्टा एल अपॉन एल यहाँ पे देखा था। तो योर स्ट्रेन इज़ नथिंग बट, मतलब ई को वैसे के वैसे रखते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये हो गए तुम्हारे इन जनरल फॉर्मूलेस फॉर योर स्ट्रेस और स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सब में वाला रिलेशन जो है हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। तो अभी एक सिंपल सा छोटू सा प्रॉब्लम हम देख सकते हैं, बट दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो थैंक यू। दिस वीडियो इज लिटिल लार्ज बट थैंक you, and if you want to join our batch in offline, so we have offline batch at Jalgaon, okay, Jalgaon, Maharashtra. If you want to join, just visit our website and get my number, and you can call me, Suryanayan Institutes.com, okay. And you can also visit this website to buy our course. This full course is there on our website in a very reasonable fees. You can go and buy this course and attend this course. It is completely it will be there for your lifetime, okay. You have the lifetime accessibility. Then you have you can watch it on your computer screen, okay, or you can download our app called Suryanayan from Play Store. And if you are using an iOS, this is for Android Play Store pe you can find this, okay. I will drop the link below in the description. For iOS people, you can download My Institute app. From your app store and put the ORG code as QEBACV, okay. That is our
org code, and then you can log in with your phone number or email id, and then you can purchase and you can watch the courses. Okay, so that is there. And you can also search for any other courses which we have there on our website. So thank you for listening, and see you in next lecture.